Hello. So that is the COVID positive and COVID negative. We have the two events with you. Okay. Positive is the favorable event. Negative is the unfavorable event. Total number of event 2. And the favorable event is 1. So negative. Negative to be COVID negative is our फेवरेबल इवेंट. हर कोई ये चाहता है कि वो कोविड नेगेटिव आए, तो ये उसकी फेवरेबल इवेंट हो गई. सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और दैट मीन्स योर योर रिपोर्ट विल बी नेगेटिव 1/2. Okay, same thing with the positive event. If we talk about the positive event, if the probability of the report will be negative as 1/2, so that is the 50%. So पॉजिटिव आने की भी कितनी हो गई? 50% हो गई. तो यहां से मुझे ये बात आपको समझाना है कि आप पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे. सो प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रेडिक्शन है, रफ एस्टिमेशन है किसी भी इवेंट का होना या नहीं होना. अब सीधा सा मैं आपसे रिलेट करता हूं, कोरिलेट करता हूं. कोविड के बाद व्हेन यू विल अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, वेदर यू विल पास और वेदर यू विल फेल. आप मुझे बताइए कि आपके पास होने की, एग्जामिनेशन में पास होने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बिल्कुल वेरी गुड, आप जो बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं. 1/2 होगी, क्योंकि सीधा सा है कि 1 जो है पास होने का जो फेवरेबल कंडीशन है, और पास और फेल ये दो हमारे पास टोटल कंडीशन है. तो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टोटल कंडीशन, सो 1/2. सो दैट इज द 50%. नाउ आई गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉइन एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. What will I do with it? Toss. And toss is the most important thing anywhere else. Whether in the cricket match, any kind of the match when the referee and the umpire, okay, and throw the toss. But not the toss. That is the fair coin is needed. Here is the word should be added to fair coin. Why fair coin? If I bring you to Sholay film. In Sholay film, Amitabh Bachchan had the unfair coin. Unfair coin means both has the head or both had the tail. So that is the unfair coin. So here is the fair word and at random. What I will do it. मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं आपको एट रैंडम इसको मैं क्या करता हूं? टॉस करता हूं और मैं कहता हूं कि हेड होना चाहिए, हेड होना चाहिए. अब मैं देखता हूं कि हेड है या टेल है. ओके, once more. Okay, that is the what happened. So that is the tail is here. So what? Okay, tail is the one condition, head is the one condition. I was expected head, but it is tail. So to my favorable condition 1 and total condition head and tail, number of conditions 2. So probability of 1/2 to get head, whether to get tail, दोनों की एक जैसी होगी. इस तरीके से अब मैं ये करता हूं कि इन दोनों सिक्कों को मैं उछालता हूं. इन दोनों सिक्कों को मैं उछालता नहीं हूं, मैं यहीं पे कर रहा हूं, ये मैंने इसको घुमाया, हेड 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 हेड. Yeah, I will get yes head. So that is the I got head. So that is the my space is this means head I got, so probability 1/2. Now both the coins simultaneously. दोनों कॉइन को मैं, ये दूसरा हो गया इवेंट, दोनों कॉइन को मैं यहां पर रोटेट करूंगा, इसको ये समझ लो टॉस करूंगा, है ना, और फिर मैं पता लगाऊंगा कि मुझे दोनों सिक्कों पे, दोनों कॉइन पे हेड आना चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू हैव
head on the both of the coins and the simultaneous toss. Yes, the first one is the head, second one is the head. So that is the first trial. First trial I will got the both coin head on it. Okay, then at randomly I will change the coin, and then next trial I got again head. Okay, so second trial both coins have the heads. Now both coins have the tail. Okay, so my third, first head, first trial, first throw, first toss, head and head, second toss, head and head, third toss, tail and tail. Okay, now I will change randomly. That is the unbiased event. Head and tail. Fourth, head and tail. First, head and head. Second, head and head. Third, tail. And fourth, head and tail. Next, that is the last trial. Head and tail. So what happened? You will remember this. I will show on the board after this activities. So head, 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 tail, tail, head, tail, and head, tail. Okay. So you will remember you, and I will tell you. So what happened? To get head on both of the coins and the 5 simultaneous throw और टॉसेस, मैंने 5 बार इन सिक्कों को फेंका और मुझे चाहिए था हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि हेड कितनी बार आया, दोनों सिक्कों पे हेड आने की, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे हेड कितनी बार आया। फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम हेड आया, थर्ड टाइम हेड एंड टेल आया, फोर्थ टाइम हेड एंड थर्ड टाइम हेडेड आया, फोर्थ टाइम हेड एंड टेल आया, फिफ्थ टाइम हेड एंड टेल आया। देखिए फिर से मैं बोलता हूं एच एच, आप एक टेबल बना लीजिए। फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, ये हो गया आपका 2 कॉलम्स बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इधर आपका एक और ट्रायल बनेगा कॉलम जिसमें आप लिखेंगे फर्स्ट ट्रायल में हेड एंड हेड एच एच, सेकंड ट्रायल में एच एच, थर्ड ट्रायल में एच एच, फोर्थ ट्रायल में हेड एंड टेल, फिफ्थ ट्रायल में हेड एंड टेल। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड? फेवरेबल कंडीशन कितनी बार आई है? 3 टाइम्स हेड हेड आया है दोनों कॉइन पे, ठीक है। और टोटल कंडीशन कितनी हो गई? वो 5 ट्रायल्स थे, टोटल थे 5। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट हेड ऑन द 5 टॉसेस, to get the head in the 5 tosses of the simultaneous 2 coins, 2 coins पे head आने की जो probability हो गई वो 3/5 हो गई, ठीक है। तो ये मैंने आपके coins को बता दिया, आप कितने भी coins ले सकते हो, ठीक है। अब I have the 2 balls, okay, that is the 2 balls, okay, now that is the at random, random की बात कर रहा हूं, इसमें बायसनेस नहीं है, इसमें कोई फेवर नहीं है, सिर्फ मैं पूछता हूं कि क्या है, मतलब एफ, दैट इज द बॉल्स इन माय राइट हैंड, द प्रोबेबिलिटी टू हैव एटलीस्ट 1 बॉल इन माय हैंड, ओके, द प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 balls in my right hand or left hand, okay, otherwise that is the, you will do this activity with your friends, okay,
you will play it and practice it more and you will find out the conclusion. So that is the, I have two balls, okay, and one boy is here. I will want to give you these balls. Which color ball the boy wants to have? इसमें से, इन दो बॉल में से वो जो बच्चा है जिसको मैं बॉल देना चाहता हूं वो कौन से कलर की बॉल लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए आपके टू बॉल्स, इसमें से कोई भी एक बॉल वो लेता है, या तो रेड लेगा या वो ब्लू लेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन, ब्लू वन है, रेड वन है, फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? अगर ब्लू की बात करते हैं कि वो ब्लू लेगा तो फेवरेबल कंडीशन 1 हो गई और टोटल कंडीशन 2 होगी, तो 1/2 50%, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। इट में रेन टुडे और नॉट, ये भी 1/2 है। अब हियर इज द वन मोर थिंग यू विल नो very well about that, the dice of snake and ladder and ludo, snake and ladder, and some indoor games you play usually in the lockdown period at last. So that is the when I throw the dice, what will be the probability to get 6 in single throw? मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने इस डाइस को क्या किया है, थ्रो किया है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, दैट इज आई विल गेट 1। ओके, सो पहले तो हम इसको समझ ले, डाइस पे नंबर्स कितने हैं। यहां पे जो एनग्रेव्ड नंबर है वो टोटल फर्स्ट पे 1 है, फिर 2 है, फिर यहां पे 3 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। मुझे 6 चाहिए और 6 एक ही बार है इसमें, और टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 6, और मेरी 6 आने की कंडीशन कितनी है? 1 कंडीशन है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वाइंस से रिलेटेड, बॉल्स से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड और प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड सारे सम्स आपकी टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस में, एक्सरसाइजेस में पूछे जाते हैं, और मैं इसीलिए आपको करके बता रहा हूं कि मुझे अब इफ आई विल टेल यू टू गेट द एवन नंबर एनी थ्रो ऑफ द डाइस, मुझे डाइस जब मैं थ्रो करूं तो मुझे कोई सा भी एक एवन नंबर आना चाहिए। एट द फर्स्ट यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट द एवन नंबर। एवन नंबर के आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, और वो है अब 1 to 6 में मुझे बता दीजिए आपके कितने एवन नंबर्स होंगे, तो सीधा सा है 2, 4 and 6। वेदर इस थ्रो में 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, तब वो मेरी फेवरेबल कंडीशन होगी, मुझे प्रोबेबिलिटी उसी की चाहिए। तो देखिए 2, 4 and 6 जो है वो फेवरेबल कंडीशन हो गई। 3 टोटल कंडीशन जो है 1, टोटल कंडीशन हो गई 6, इस पर 6 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट एवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ द सिंगल डाइस, सो ये हो गई फेवरेबल कंडीशन 3 डिवाइडेड बाय द टोटल कंडीशन 6, सो 3/6 इक्वल टू 1/2, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ये मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है और बहुत गजब का है, बहुत गजब का, बहुत ही मजेदार है ये। अब वेदर व्हेन, ओके, अब बात ये करते हैं कि अभी तक मैंने सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी में बात की है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि विल यू गिव द एग्जांपल ऑफ द 101% सर्टेन इवेंट्स? सर्टेन इवेंट्स की आप मुझे दे सकते हैं? कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि जो 100% सर्टेन है? होगा ही होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब बताइएगा, ठीक है। अब when that is the doublet, okay, when I apply a force on it, it will rotate on its axis. The probability to get
rotation of a wavelet after applying force on it and the right direction. मैं ये कहना चाहता हूँ, फिजिक्स ले आया इसमें, ये वेवलेट पड़ा है मेरे सामने, मैं इस पे जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके रोटेट होने की, इसकी राइट डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसके रोटेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सीधा सा इवेंट 1 है और फेवरेबल कंडीशन भी 1 ही है, क्योंकि मैं इसमें फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये कह दिया है। तो ये हो गई सर्टेन इवेंट। आप कुछ भी करो, जब भी इस पे फोर्स अप्लाई करोगे जो है प्रॉपर डायरेक्शन में, तो ये रोटेट करेगा ही करेगा। तो मुझे और भी एग्जांपल बता दीजिए ऐसे हमारी रियल लाइफ, डेली लाइफ से। सो दैट इज ये हो गया। अब यहां देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर यहां पे जो है ये सारे फ्लाइंग कार्स लेके बैठा हूं, ठीक है। सो दैट इज द वेरी गुड, द सफल, दैट इज द कैट ऑफ द सफल एंड दैट इज द वे। सबने ताश खेले, बहुत ताश कूटे हैं, हम ये ताश कूटना बोलते हैं इसको, ठीक है। ताश कूटे हैं पूरे लॉकडाउन पीरियड में, घर में फैमिली के साथ, और वेरी गुड, दैट इज द वेरी गुड साइंस। और ये तो बहुत गजब की चीज है। मैं आपको इस ताश प्लेइंग कार्ड से आप प्रोबेबिलिटी सीख सकते हो और इससे रिलेटेड सम्स आते हैं उसमें। टू गेट एंड वन टर्म, वन ट्रायल मीन्स टू गेट द प्लेइंग कार्ड ऑफ डायमंड। इसमें से सफल कार्ड में से मैं एक पत्ता निकालता हूं आपके सामने, और उसके डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। मैंने एक पत्ता निकाल के फेंका, दैट इज द डायमंड, पहली बार में ही आ गया, अरे मैं तो जीत गया, ठीक है। यह हार जीत वाला खेल है, तो ऐसा कैसे, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब इसके आने की, ये तो हो गया, मैंने निकाल के कर दिया और आ गया है। पर मैं अगर इसको एस्टिमेट करूं, अगर मैं इसको आई वांट टू प्रेडिक्ट इट, तो मैं कैसे करूंगा मैथमेटिकली? अब मुझे बता दीजिए, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52। उनमें से डायमंड्स के कितने होंगे? 13, ठीक है। उन डायमंड के 13 में से हम एक कार्ड निकालेंगे, तो हमारा होगा 13C1 डिवाइडेड बाय द 15C1। ये प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। एक पत्ता इस तरीके से ये कार्ड का हो गया। अब इसमें से सीधी सी बात करते हैं कि कोई भी एक पत्ता, चाहे वो स्पेड का हो, है ना, या आपका स्पेड हो, हर्ट हो, डायमंड हो, 4 इसमें सूट्स होते हैं। उन 4 सूट्स में से एक बार में कोई भी पत्ता किसी का आने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? तो 4 सूट्स हो गए, फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी हो गई? 4, और टोटल जो है कार्ड्स कितने हो गए? 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52 इक्वल टू 4 13 जा 52, मतलब 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो देखिए हमारे ये सारे गेम्स खत्म हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं, ये जो है 3 जो है ये पीसीएस है, यानी गेम ये 4 पीसेस होंगे, बट यहां पर जो है 3 पीसेस है, और कोई भी मुझसे एक पीस मांगेगा, है ना, मैं निकालता हूं एट रैंडमली आपके सामने ही इसमें से निकालूंगा आंखें बंद करके, ताकि ये बायसनेसडी होगी। एक पीस में आंखें बंद करके निकाल रहा हूं, और मुझे चाहिए कि उसके रीड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये रेडी निकला। हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई थी? 1 है हमारी फेवरेबल कंडीशन रेड होना, और ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगी? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सो दैट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, सॉरी, द प्रैक्टिकल वे टू प्रैक्टिस द प्रोबेबिलिटी। नाउ आई एम गोइंग टू teach on the board about the complete probability.